بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب معزز مہمانوں کو کاروان شعر و سخن کی اس خوبصورت محفل میں خوش آمدید. آپ سب خواتین و حضرات کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. خدا کرے یہ سال بنی نوع انسان کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لائے اور دنیا سے بیماریوں اور جنگوں کا خاتمہ ہو جائے. آج کا مشاعرہ عظیم شاعر محسن نقوی صاحب کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے. جنوری کے مہینے میں ہی ان کا یوم وفات ہے. اردو ادب کے لیے ان کی عظیم الشان خدمات ہیں. خدا تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین. آج کے پروگرام کی صدارت محترم جناب سید منیف اشر ملیح آبادی صاحب فرمائیں گے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کرسی صدارت کا رونق افروز ہوں اور ہمیں مشاعرہ شروع کرنے کی اجازت عنایت فرمائیں. جناب اعلیٰ ماشاء اللہ بسم اللہ کیجیے حضور. جزاک اللہ. پروگرام شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے. ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت قرأت پیش کرنے کے لیے شامل ہیں محترم جناب باسل رضا بٹ صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا ایک حصہ اور اس کا ترجمہ عطا فرمائیں. جی باسل رضا بٹ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. سبحان اللہ. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ما شاء الله. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
آیات قرآن کریم کا اردو ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی پیش خدمت ہے۔ یہ آیات سورہ الانعام کی آیت نمبر 96 تا 99 ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ یقیناً دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ تمہارا اللہ یہ ہے، سو بتاؤ تم کہاں سے واپس لوٹائے جاتے ہو؟ وہ صبح کو ظاہر کرنے والا ہے اور اس نے رات کو باعث آرام اور سورج اور چاند کو ذریعہ حساب بنایا ہے۔ یہ اندازہ اس کا ہے جو غالب ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے سے زمین پر بھی اور سمندروں کی مشکلات میں راہ معلوم کرو۔ ہم نے علم والی قوم کے لیے نشانات کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد اس نے تمہارے لیے ایک عارضی ٹھہرنے کی جگہ اور ایک لمبے عرصے تک رہنے کی جگہ مقرر کی ہے۔ ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے نشانات کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان ماشاء اللہ۔ معزز حاضرین، شعراء کرام اور شاعرہ، اکاڑا پاکستان سے ہمارے ساتھ شامل ہیں کاروان شعر و سخن کی کوارڈینیٹر محترمہ نجمہ محبوب صاحبہ۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ حمد و نعت کے چند اشعار پیش فرمائیں، اور پھر اس کے بعد محسن نقوی صاحب مرحوم، جن کی یاد میں ہم آج کا یہ مشاعرہ منعقد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ایک مضمون بیان فرمائیں، اور پھر آج کے مشاعرے کی نظامت میں میری معاونت بھی کریں۔ تقریباً آدھے مہمانوں تک کو وہ دعوت کلام دیں، اور اس کے بعد سے پھر میں نظامت کو سنبھالوں گا۔ اس طرح ہم اس مشاعرے کو لے کے چلیں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں محترمہ نجمہ محبوب صاحبہ۔ شکریہ بہت بہت۔ سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم اور السلام۔ امید ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے وہ کامیاب ہوگی، انشاءاللہ۔ اور وقت ضائع کیے بغیر حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار بیان کروں گی۔ کر رہی ہوں خدایا یہی التجا، کر رہی ہوں خدایا یہی التجا، میری منظور ہو مانگوں جو بھی دعا، میری منظور ہو مانگوں جو بھی دعا، اور کس کے کھلا در پہ جاؤں میں، اور کیا ہے مولا تمہارے سوا، چن لے نجمہ کو محبوب بندوں میں تو، چن لے نجمہ کو محبوب بندوں میں تو، کر دے محمد کے صدقے مجھ پر عطا۔ یہ کچھ اشعار اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کروں گی پیش۔ جی، میری کہاں مجال، میری کہاں مجال کہ نعت نبی لکھوں، اے خدا نہ ہو تو نہ ایک حرف بھی لکھوں۔ یہ ہے کہ خیر الورا، خیر الورا حبیب خدا سید البشر، ہر صبح و شام مدح فقط آپ کی لکھوں۔ اگلا شعر ہے کہ پڑھ کر درود پاک اٹھاؤں قلم کو جب، پڑھ کر درود پاک اٹھاؤں قلم کو جب، نعت نبی حضور میں
डूबी हुई हूँ। वाह, बहुत खूब, जी, बहुत खूब। ये तो वाह, वाह। सूरे हमद और नाज के 3 अशार मैंने पेश किए। अब इस मुशायरे की निज़ामत क्योंकि मेरे ज़िम्मे है तो मैं इसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बिशारत रिहान साहब जो हैं, जो कि हमारे मेहमानों में भी शामिल हैं और मेज़बान भी हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले मैं उनको दावत दूंगी। उनसे गुजारिश है कि वो मेहमानों को खुशामदीद कहें और उसके बाद वो अपने कलाम से हमें नवाजें। जी, बिशारत रिहान साहब, जी वो हैं। जी जी हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब का तहे दिल से ममनून हूँ कि आप तशरीफ लाए हमारी छोटी सी कॉल पे। मैं सब तमाम नाजरीन, सामीन, हाजरीन की खिदमत में साल नौ की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदा करे कि ये साल हम सब के लिए लातादाद खुशियाँ लेकर आए। आमीन। अल्लाह ताला अपनी रहमतों, फजलों, अनायात से नवाजे, हर किस्म के शर और वबा से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। आमीन। इसके बाद मैं इस मुशायरा के तमाम शुरका का दिल की अथा गहराइयों से ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागूं मसरूफियात में से वक्त निकाला और तशरीफ लाए इस महफिल को रौनक बख्शने के लिए। तो नए साल के तनाज़ुर से मैं एक छोटी सी नज़्म आपकी इजाजत से जनाब सदर इरशाद इरशाद जी इरशाद। जी नया साल मैं आपको अर्ज बहुत करता हूँ मुबारक कि हो। नया साल आया, नया साल आया, वाह, नया साल आया, नया नया साल साल। आया, हजारों मोहब्बत के पैगाम लाया। वाह, बहुत नजर आ रहा है हसीन ये जमाना, नजर आ रहा है हसीन ये जमाना, मोहब्बत का रंगीन है हर फसाना, फिजा पर है जज्बात का रंग छाया, नया साल आया, नया साल आया। जिधर देखो उम्मीद के गुल खिले हैं, जिधर देखो उम्मीद के गुल खिले हैं, गुलो लाला की दीद के सिलसिले हैं, खुदा की है रहमत का हर समत साया, नया साल आया, नया साल आया। बहुत खूब। हर एक दिल में है ख्वाहिशे अमन उल्फत, हर एक दिल में है ख्वाहिशे अमन उल्फत, वो पूरी सभी की तमन्नाए इज्जत, करम कर हम अहले जहां पर खुदाया, नया साल आया, नया साल आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ है हमें साले नौ रास आए, दुआ है हमें साले नौ रास आए, हर लम्हा अपने खुशी पास आए, जग में हर एक को माया, नया साल आया, नया साल आया, हजारों मोहब्बत के पैगाम लाया। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। बहुत खूब। और जनाब सदर आपकी ही इजाजत से एक गजल पेश करना चाहता हूँ। अता फरमाइए। अर्ज किया है जनाब सदर कि छट जाएं ये बादल तो कहीं दिन की खबर हो, जाएं ये बादल तो कहीं दिन की खबर हो, समझा हूँ जिसे रात वो मुमकिन है सहर हो। एक शख्स तेरे हिजर में 100 बार मरा है, एक शख्स तेरे हिजर में 100 बार मरा है, मुमकिन है कि इस बात की तुझको न खबर हो। खुशबख्ती पे नाज करूंगा मैं हमेशा, खुशबख्ती पे मैं नाज करूंगा हमेशा, खुशबख्ती पे नाज करूंगा मैं हमेशा, मुझ पर जो मोहब्बत में कभी तेरी नजर हो। सूरज की शुआओं में भी आ जाती है ठंडक, सूरज की शुआओं में भी आ जाती है ठंडक, जब साया फिगन जिस्म पे जुल्फों का शजर हो। और जनाब सदर शेर अर्ज कर रहा हूँ कि खुद अपने ही माहौल से कट जाता है इंसान, खुद अपने ही माहौल से कट जाता है इंसान, जब जात के गुंबद में न रखा कोई दर हो। और तर्ज है कि शामिल है हर एक लफ्ज में जब खून जिगर का, शामिल है हर एक लफ्ज में जब खून जिगर का, रेहान के अशआर में
फिर क्यों ना असर हो। वाह वाह वाह, अच्छा है भाई, बहुत आपकी शुक्रिया बहुत आपकी अच्छा। बातों का। और मेरी तो मैं अब है कि मोहसिन नकवी साहब के थोड़ा सा उनके ऊपर लिखा हुआ जो है वो पढ़ना चाहूंगी। जी जी इरशाद। ज्यादा टाइम नहीं दूंगी आप लोग जी। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इनका असल नाम गुलाम अब्बास था और इन्होंने मोहसिन नकवी के नाम से शोहरत पाई। इनका शजरा नसब जो है वो 10वें इमाम अली नकवी से मिलता है और ये 5 मई 1947 को डेरा गाजी खान के एक मोहल्ला सादात 45 में पीर के दिन पैदा हुए। माँ बाप जो थे वो नहायत नेक सिरत इंसान थे और ये 5 बहनें और एक भाई जो थे इनके अलावा थे। इसके अलावा इनकी जो तालीम है, 7 साल की उम्र में इन्होंने नाज़रा कुरान पढ़ा और फिर इसी तरह 64 में हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक, 66 में FA गवर्नमेंट कॉलेज डेरा गाजी खान से और 68 में फिर इन्होंने 68 में BA फर्स्ट डिवीजन से किया और 70 में ये गवर्नमेंट कॉलेज बसन रोड मुल्तान में चले जाते हैं और वहाँ पर ये MA करते हैं, MA उर्दू, और इस तरह से ये अपने खानदान के पहले फर्द बनते हैं जो कि मास्टर्स की तालीम लेते हैं। इससे पहले इनके एक चचा थे लेकिन उनकी डेथ हो गई थी और वो अपने खानदान के सबसे पहले पढ़े लिखे शख्स थे और उन्होंने भी शायरी की, लेकिन उनका सिर्फ एक ही शेर हमें मिलता है। जब ये MA कर रहे थे तो इसी दौरान उनकी अपने चचाजाद से इरशाद फातिमा से इनकी शादी हुई और अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी और 2 बेटों से नवाजा। बड़े बेटे जो हैं इनके वो अब्बास नकवी जो कि डेरा गाजी खान में कारोबार चला रहे हैं और छोटे बेटे जो हैं इनके अकील नकवी जो कि बाप की तर्ज पे चलते हुए ही उनके रास्ते कदम पे चलते हुए खिताबत में भी अक्सर सानी हमाद कहलाते हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं और उनकी किताबें भी आ चुकी हैं। कारोबार जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इनका बेटा संभाल रहा है, तो इन्होंने जो कारोबार किया था लाहौर में आके इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू किया था मोहसिन नकवी ने, जो कि इधर इनके दूसरे बेटे अकील नकवी चला रहे हैं। मोहसिन नकवी ने सियासत में भी हिस्सा लिया और इनकी सियासत जो है उसमें 77 में 68 के इंतखाबात में जिस हल्के से ये इलेक्शन लड़ रहे थे वहां पे मौलाना मुफ्ती महमूद जो है उनके खिलाफ ये इनको MNA का टिकट मिला था, लेकिन वो टिकट जो थे ये मुलतवी हो गए थे इस रहे। और जब इनकी शहादत हुई तो उस वक्त भी ये मशीर के फराइज अंजाम दे रहे थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। अगर देखा जाए तो तहरीर और तकरीर में मोहसिन नकवी जो है बहुत बेबाक और निडर किस्म के इंसान थे और अल्लाह ताला ने इनको बेपनाह हाफसा जो था वो अता किया था। बहुत ही ज़हीन फतीन शख्स थे और इनको हजारों अशार जो थे वो अज़बर थे और बचपन से ही इन्होंने मुख्तलिफ असातिज़ा को पढ़ना और बहुत गहराई के साथ उनको समझना शुरू कर दिया था। इनका मुतालिया और मुशाहिदा जो था वो दोनों ही बहुत गहरे थे, जिसने इनकी शख्सियत में एक निखार पैदा किया। अंदाज व बयान और लबो लहजा इनको कुदरत की तरफ से ही मयसर हुआ था, मुहैया किया गया था और इन्होंने जब उसको पॉलिश किया स्कूल के ज़माने से ही ये बज़्म अदब और बाकी सरगर्मियों में शामिल होना शुरू हो गए थे। जब इन्होंने अपने इस फन को निखारा तो ये बहुत अच्छे खतीब बन गए और खिताबत में बेमिसाल अंदाज की वजह से इनको हमादे अहले बैत के नाम से याद किया जाता है। शायरी जो है वो इन्होंने 8वीं जमात में पहला शेर कहा था और शफकत कासमी जो है उनको ये अपना उस्ताद मानते। वैसे तो बाकायदा इन्होंने किसी से इस्लाह नहीं ली, कुदरती इनको एक ये वदियत थी, लेकिन इनका ये है कि अपने ज़मानत तालिबे इल्मी में ये अदब, बैतबाजी और तकरीर और तहरीर जो थे उनमें शामिल होते रहते थे और इस तरह से इन्होंने कॉलेज में भी जब गए हैं तो कॉलेज के जो मुख्तलिफ अदबी रसाइल थे उनमें भी ये शामिल रहे और मुदीर बने और इसके अलावा ये अखबार जो था उसमें कॉलम में चोर दरवाजा के नाम से लिखते रहे। PTV का एक प्रोग्राम रुतरंगी लड़ी भी करते रहे। इनकी अगर हम किताबें देखें तो 12 किताबें हैं जिनमें बंदे कबा पहली किताब है इनकी, बरगे सहरा है, फिर मौजे दराक और इसी तरह से इनकी रिदाए ख्वाब है और रेज़ाए हर्फ,
अजाब दीद, तुले अश्क है, रुखते शब, फिर इसी तरह से खैमे जान है, और इनकी मजीद किताबों में फिराते फिक्र, मताए दर्द, और इन्होंने गजल भी लिखी है, किताब पे भी इनकी किताब है। और इसके अलावा जो इनकी शायरी का एक खास वस्फ है वो ये है कि इन्होंने मजहबी शायरी यानी करबला के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और करबला पे इनकी शायरी की एक किताब हक एलिया जो है वो भी मौजूद है। और इनकी शायरी को अगर हम देखें तो इनकी तमाम जो बुक्स हैं वो मावरा पब्लिशर्स ने शाया की थी, और इनके तमाम कलाम को 2 कुलियात में यकजा किया गया है। कुलियात मोहसिन जो है उनकी नज़्म गज़ल और किताब पर मुश्तमिल जो 7 किताबें उन पर है, और जो मिरास मोहसिन है वो इनका ऐसा कुलिया है, कुलियात कलाम है जिसमें इनकी मजहबी शायरी पर मुश्तमिल किताबें शामिल है। इन पर बहुत सारे लोगों ने तहकीक की, और अगर हम इनको देखें तो इनकी जो शायरी है उसका तजसिया करें तो हमें अंदाजा होगा कि मोहसिन नकवी जो हैं वो एक ऐसे शायर हैं कि जिनकी शायरी का तजसिया हम करते हैं तो असरी हदूदो कयूद से बाला सहर अंगेज और जानदार अदब के खालिक मोहसिन नकवी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भरपूर कुव्वत के साथ अपनी तख्लीकी सलाहियतों को दवाम बख्शा। मोहसिन नकवी एक अहद साज, बेबदल, हसास तबीयत के शायर थे। उन्होंने भरपूर हकीकी अंदाज में माशरती इक़दार की तर्जुमानी करते हुए जिंदगी की तस्वीर कशी हर पहलू और हर अंदाज में की। उनका मुशाहिदा वसत व गहराई ने उनके शऊर की परतों को इस तरह से उजागर किया कि वो माशरे की दुखती, सुलगती, तेज धार, तलख रवैयों के काट को भी अपनी मोहब्बत की खटी मीठी तलवार से काटते हैं। इनकी इंतहा पसंदी इंसान को मायूसी और नाउमीदी के अंधेरों से निकालती है, पस्ती में धकेलती नहीं बल्कि खुद आगाही की जिया बनकर जिंदगी की रमक बन जाती है। वो गजल गो शायर थे। नसर में भी एक आला किस्म का कलाम हमें मिलता है। उन्होंने अपनी तमाम किताबों के जो दिबाचे थे वो खुद तहरीर किए हैं। अगर हम उनकी नसरी तहरीर को देखें तो वो भी अदब में एक फन पारे से कम नहीं है। वो अपने कारी को एक ऐसा शौर दे देते हैं जो कि हुकूक की बहाली और हसूल के लिए आवाज को बुलंद करता है। उनकी शायरी का खासा ये है कि ख्वाब की चुबन, ताबीर की जस्तजू, जबरो इस्तबदाद, सब्रो ज़ब्त, मुफाहमत और कवानीन की बहाली और मसावात वगैरह उनकी खास औसाफ हैं। वो ज़हीनो फ़तीन तो थे ही, कादरुल कल्ब ख्याल को अल्फाज का खूबसूरत लिबास पहनाना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अगर हम ये देखें कि उनकी शख्सियत में ये सारी चीजें क्यों हुई, तो उनके घर का जो माहौल था वो बहुत ही अदबी और समाजी इक़दार का एक मजमुआ था। नादे अली और कलाम इलाही की लोरियों में परवान चढ़ने वाले जो मोहसिन नकवी हैं, उनको कुदरत की तरफ से एक शोला बे अंदाज़े गुफ्तगू तो मिला ही था, लेकिन उनकी शख्सियत को सहर अंगेज निखार जो है वो उनके अदबी ज़ौक़ ने बख्शा। ये तो उनकी शख्सियत के बारे में थोड़ा सा बयान था। अगर हम उनके शायरी को देखें तो कुछ अशार में उनकी शायरी के बयान करना चाहूंगी जो उनकी शायरी की नुमाइंदगी करेंगे कि ज़माने भर की निगाहों में जो खुदा सा लगे, ज़माने भर की निगाहों में जो खुदा सा लगे, वो अजनबी है मगर मुझको आशना सा लगे। इसी तरह जैसा कि मैंने बताया कि उनकी एक मुकम्मल किताब जो है वो किताब पर मुश्तमिल है, और उनकी किताबों में आज़ाद नज़्म भी हमें मिलती है, और उनकी किताबों में हमें ये किताब भी मुख्तलिफ बाकी किताबों में भी हमें मिलते हैं। उनकी किताब से एक किताब है कि चांदनी कारीगर नहीं होती, चांदनी कारगर नहीं होती, तेरगी मुख्तसिर नहीं होती, उनकी जुल्फें अगर बिखर जाएं एहतरामन सहर नहीं होती।
میں مزید وقت نہیں لیتی، بس ان کے 2-3 اشعار اور پیش کروں گی. جی ارشاد. مجھ سے ٹکرائے تھے دنیا کے حوادث، لیکن میری دل نہیں تھا کہ پریشان ہوتا. واہ میرے ذہن کی تنہائی پہ ہنسنے والے، میری آنکھوں کو ذرا جرت حیرانی دے. واہ واہ کہتے ہیں کہ موت جب چل رہی ہوگی، موت جب چال چل رہی ہوگی، زندگی ہاتھ مل رہی ہوگی، کیا بات ہے. اسے گنوا کے میں زندہ ہوں اس طرح محسن کہ جیسے تیز ہوا میں چراغ جلتا ہے. ان کی بہت مشہور ایک غزل ہے، یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی، اس دشت میں زہر تھا کیا آوارگی. بچھڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر. ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کرتے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. یہ جو ان کے کیا بات، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا. تو یہ ہمارے بہت عظیم شاعر جو تھے 15 جنوری 1996 کو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے مذہبی شاعری بھی کی، اور ضیاء کے ماشاء اللہ کے دوران جس طرح سے ہمارے معاشرے میں جو ایک مذہبی اور لسانی اور عامر قوتیں جو تھی جنہوں نے سر اٹھایا، تو کیونکہ یہ اہل سادات سے تھے تو ان کی شاعری کا نتیجہ جو نکلا وہ یہ کہ 15 جنوری 1996 کو اپنے روزمرہ کے امور نپٹا کے جب یہ اپنے دفتر سے نکلے تو 7:20 پر فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا. مذہبی بنیادوں پر سپہ صحابہ نے انہیں قتل کیا تھا، اور ان کے ساتھ اس وقت پروفیسر آفتاب احمد نقوی بھی شامل تھے جو کہ شہید ہوئے. اور اس طرح سے محسن نقوی کی زندگی کا آغاز جو 5 مئی 1947 کو ہوا تھا، وہ 15 جنوری 1996 کو لاہور میں اختتام ہوا، اور واپس وہ اپنے شہر ڈیرہ غازی خان میں مدفون ہوئے. یہ تو تھا محسن نقوی پر مختصر سا ایک تعارف ان کی شاعری کا اور ان کی شخصیت کا. بہت خوب. بہت خوب. اب اب ہم آپ مہمانوں کو بڑھائیں آگے بلانے کا سلسلہ. اب ہم اپنے مشاعرے کا مزید آگے آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے عزیز ساتھی اس وقت ہمارے درمیان دبئی میں موجود ہمارے بہت ہی محترم ساتھی عبدالباسط انور صاحب. عبدالباسط انور صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان؟ جی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالباسط صاحب کو دعوت کلام دوں گی جو کہ ہمارے بہت ہی اچھے شاعر ہیں، اور میری ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں. جناب محترم عبدالباسط انور صاحب. السلام علیکم. تمام شعراء کرام کو نئے سال کی مبارکباد، اور صاحب صدر کی اجازت سے چند اشعار اور غزل سناؤں گا. اثر اس طرح کا ہو دل کو وہ چھو لیں، اثر اس طرح کا ہو دل کو وہ چھو لیں، لکھوں جب کبھی بھی میں الفاظ بولیں، بیاں ہوں وہ نقطے جو سب سے جدا ہوں، رموز و حقیقت کے گر ان میں کھولیں، سنیں جب کوئی بھی مقرر کہے وہ، سنیں جب کوئی بھی مقرر کہے وہ، اور مطلب و معنی سمجھ کے وہ ڈولیں، ترنم سے پڑھ لوں تو ہے اور بہتر، ترنم سے پڑھ لوں تو ہے اور بہتر، سنے جو بھی لہرائیں خوشیوں سے ہو لیں. بہت قیمتی وقت ہوتا ہے انور، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے انور، نیا کچھ وہ سننے کی خواہش میں لو لیں، دھیان لو. اثر اس طرح کا ہو دل کو وہ چھو لیں، لکھوں جب کبھی بھی میں الفاظ بولیں. غزل سنارا. آسماں سے جو برستا ہے وہ رحمت بن کر،
آسمان سے جو برستا ہے وہ رحمت بن کر، ایسے پانی نے ہی سیراب کیا ہے مجھ کو، آسمان سے جو برستا ہے وہ رحمت بن کر، ایسے پانی نے ہی سیراب کیا ہے مجھ کو، اس کے فضلوں کا کبھی حق میں ادا کر نہ سکا، بس اسی سوچ نے پرآب کیا ہے مجھ کو، اس کے فضلوں کا بھی حق میں ادا کر نہ سکا، بس اسی سوچ نے پرآب کیا ہے مجھ کو۔ توجہ چاہتا ہوں، عقل بنجر سی زمیں، علم بھی ایک صحرا نما، عقل بنجر سی زمیں، علم بھی ایک صحرا نما، رب کے احسانوں نے شاداب کیا ہے مجھ کو۔ واہ واہ واہ، شکریہ۔ زندگی بھر میری کوشش یہ رہی وہ نہ چھٹے، زندگی بھر میری کوشش یہ رہی وہ نہ چھٹے، تھام کر ہاتھ وہ مہتاب کیا ہے مجھ کو، تھام کر ہاتھ میں نے بھی اوڑھ رکھی اس کی محبت کی ردا، میں نے بھی اوڑھ رکھی اس کی محبت کی ردا، محبت کی ردا، میں بس ایک ذرہ تھا کم خواب کیا ہے مجھ کو، پھر پڑھیے صاحب، میں نے بھی اوڑھ رکھی اس کی محبت کی ردا، میں بس ایک ذرہ تھا کم خواب کیا ہے مجھ کو، پاس اور فیل کے جو فرق رہے کم وہ نہ تھے، پاس اور فیل کے جو فرق رہے کم وہ نہ تھے، اعلیٰ درجوں سے کامیاب کیا ہے مجھ کو، حقیقت ہے یہ۔ اور میری خوش بختی ہے اطراف میرے اس کے رفیق، میری خوش بختی ہے اطراف میرے اس کے رفیق، انہی احباب نے جناب کیا ہے مجھ کو، انہی احباب نے، شکریہ، میری خوش بختی ہے اطراف میرے اس کے رفیق، انہی احباب نے جناب کیا ہے مجھ کو، لوگ دیوان پہ دیوان لکھے جاتے ہیں، لوگ دیوان، جزاک اللہ، لوگ دیوان پہ دیوان لکھے جاتے ہیں، چند اشعار نے سرخاب کیا ہے مجھ کو۔ واہ بھائی واہ 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 واہ، یہ آپ نے صحیح کہا، کیا زبردست تعلیم ہے آپ نے بالکل صحیح کہا، کیا بات ہے، کیا بات، لوگ دیوان پہ دیوان لکھے جاتے ہیں، لوگ دیوان پہ دیوان لکھے جاتے ہیں، چند اشعار نے سرخاب کیا ہے مجھ کو۔ ماشاءاللہ، آپ کے لیے تعلیم زیب ہے، ماشاءاللہ، کیا کہیں، بلکہ یہ شعر آپ پڑھتے ہی جائیں۔ لوگ دیوان پہ دیوان لکھے جاتے ہیں، عجز سے آخری شعر ہے،
इज्ज़ से अपने खुदा से है ये कहना अनवर, इज्ज़ से अपने खुदा से है ये कहना अनवर, दिल में बस कर वही नायाब किया है मुझको, दिल में बस कर वही नायाब किया है मुझको, आसमां से जो बरसता है वो रहमत बनकर, ऐसे पानी नहीं सैराब किया है मुझको। मुझे बुला लीजिए प्लीज। चलें, ठीक है, पहले साले अच्छा साहब को बुला लें। तो मोहसिन नकवी साहब का एक बड़ा खूबसूरत एक गजल है, उसका मतलब है कि आंखों में कोई ख्वाब उतरने नहीं देता, आंखों में कोई ख्वाब उतरने नहीं देता, ये दिल के मुझे चैन से मरने नहीं देता। क्योंकि इस मतले को मैंने बड़े अपना बरमला शायर थे मोहसिन नकवी साहब, बड़े बरमला शायर, क्या कहें। जी मुनीफ भाई, जी मुनीफ भाई, तो इनके इसी मतला ऊला को मैंने अपने गजल का मतला सानी बनाया है। देखिएगा अता के ये आपको मतलब फरमाइए, अता फरमाइए, क्या कहें, मतलब देखिएगा। रातों को मेरी अब वो संवरने नहीं देता, तदमीन मैंने की है कि रातों को मेरी अब वो संवरने नहीं देता, आंखों में कोई ख्वाब उतरने नहीं देता, नजरे वो बचाता है मेरे सामने आकर, शाइख साहब के नजरें वो बचाता है मेरे सामने आकर, वो दिल में कभी अपने संवरने नहीं देता। जज़ाकल्लाह। और मुनीफ भाई ये देखिएगा कि इस दौर के मंसूर हैं हुजरों में फरोकश, इस दौर के मंसूर हैं हुजरों में फरोकश, है खौफ जो सूली से गुजरने नहीं देता। अब कोई तो अपने हुजरे में एवन फील्ड में बैठा है, तो कोई कहाँ बैठा है पता नहीं, कहाँ बैठे। आज के मंसूर ऐसा ही है साले अच्छा साहब, अब क्या। जी हाँ, आवाज कोई, चीख कोई, शोर किसी का, ये देखिएगा कि आवाज कोई, चीख कोई, शोर किसी का, इंसान की तकलीफ को मरने नहीं देता। इंसान की तकलीफ को शोलों को समेटें या शरारों को छुपा लें। शेर देखिएगा कि शोलों को समेटें या शरारों को छुपा लें, किरणों को मेरे दिल में बिखरने नहीं देता। बहुत खूब साले साहब, आधा बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुंडे साहब। मेहताब के चेहरे पे जो छाया है बादल, मेहताब के चेहरे पे जो छाया है बादल, गजरा शबे यल्दा का संवरने नहीं देता। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है, बहुत शुक्रिया। ये दर्द जिगर है क्या एक आस का जंगल। सलमान भाई सुन रहे हैं आप? जी, बड़े तवज्जो के साथ। जी मैं हमतन गोश। ये दर्द जिगर है कि एक इस आस का जंगल, वो आस के कुंपल को भरने नहीं देता। तूफान हो, सैलाब हो या दलदला सवाले, मकता है कि तूफान हो, सैलाब हो या दलदला सवाले, है कोई मेरे घर कभी गिरने नहीं देता। है कोई जो घर मेरे गिरने नहीं देता, रातों को मेरी अब वो संवरने नहीं देता, आंखों में कोई ख्वाब उतरने नहीं देता। दूसरी गजल उनका शेर है कि हमने तो आपकी आवाज ही सुननी है, कोई सुना दे। ये रख रखाव मोहब्बत सिखा गई उसको, उनका शेर है मोहसिन का कि ये रख रखाव मोहब्बत सिखा गई उसको, वो रूठ कर भी मुझे मुस्कुरा के मिलता है, वो रूठ कर भी मुझे मुस्कुरा कर मिलता है।
इस पर मैंने वो अपनी ये गजल कोशिश की है कि वो एक शहर के आलम तमाम रहता है, वो शहर के आलम तमाम रहता है, ना जाने कितनी बलाओं का रक्स खाना है। वो हसीन सा चेहरा जो निखरा निखरा है, जो कोई हसीन सा चेहरा जो निखरा निखरा है, किसे पता है कि वह क्यों क्यों उदास रहता है। ना कोई रहनुमा और ना कोई मंजिल है, ना कोई रहनुमा और ना कोई मंजिल है, वो एक दश्त में गुम गुश्ता काफिला सा है। वाह वाह, कभी जो देखूं मैं रास्ते पे सोए हुए लोग, कभी जो देखूं मैं रास्ते पे सोए हुए लोग, वहाँ ये होता है इंसान बेसहारा है। क्या कहने, क्या हकीकत बयान फरमाई। गुंडे भाई ये देखिएगा कि यहाँ तो हाथ कलम पहले पहले होते थे, यहाँ तो हाथ कलम पहले पहले होते थे, है ऐसा दौर जबानों को काट डाला है। वाह वाह, क्या बात है। और यहाँ तदवीन की है मैंने कि लबों पे आती नहीं है हंसी हंसी की तरह, हंसी की तरह, लबों पे आती नहीं है हंसी हंसी की तरह, वो रूठ कर भी मुझे मुस्कुरा के मिलता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह है कि मुस्कुरा के ही मिलना चाहिए। मुझे मुस्कुरा के मिलता अच्छा है। कहा शाइक भाई, कोई नहीं कि सुने दिल की दास्तानों को, कोई नहीं कि सुने दिल की दास्तानों को, हर एक शख्स यहाँ खून में नहाया है। हर एक शख्स यहाँ खून में नहाया है। किसी की आंख में आंसू भले ही जिंदा हो, किसी की आंख में आंसू भले ही जिंदा हो, ये जानते हैं सभी वो फना का साया है। ये जानते। और आखिरी शेर है कि नजर में आता नहीं है उफ़ की सुमतों में, नजर में आता नहीं है उफ़ की सुमतों में, मगर नजर में सभी के वो एक सितारा है। और मकता है कि लहू में अपने नहाया है सवाले मद्दत से, लहू में अपने नहाया है सवाले मुद्दत से, जिसे भी देखिए वो रोन के गुजरता है। गुजरता है, वाह साले भाई, अपने नहाया है सवाले मुद्दत से, जिसे भी देखिए वो रोन के गुजरता है। बहुत खूब। वो एक शहर के आलम तमाम रहता है, न जाने कितनी बलाओं का रख खाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की समात का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह फिर हाजिर होता हूँ वहाँ हाजिरी लगा के, शिकागो में हाजिरी लगा के फिर हाजिर होता हूँ। चले, उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है।